नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमो सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव नियुक्त निराधार। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગેન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 111નો સ્વાધ્યાય પૂરો થવા આવ્યો છે. આચાર્ય ભગવાનની ગાથા 111 એનો અન્વયાર ભાવાર્થ તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ ગાથા 111 ઉપર આપેલ પ્રવચનનો ઘણો ભાગ આપણે કર્યો છે. આજે શેષ ભાગ લઈએ અને તે પછીથી આચાર્ય ભગવાનની ગાથા 112નો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કરીશું. આચાર્ય ભગવાનની ગાથા 112. યત્ર મતિઃ તત્ર ગતિઃ જીવત્વં મરણમ અપી યેન લભશે તેન પરબ્રહ્મ મુક્ત્વા મતિ મા પરદ્રવ્યે કાર્ષી. ગાથા 112માં જે વાત 111માં આવી એને દ્રઢ કરવામાં આવી છે. એના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે જીવ યત્ર મતિઃ તત્ર ગતિ. हे जीव, जहां तेरी बुद्धि है वहीं पर गति है. उसको येन त्वं मुक्त्वा लभसे, जिस कारण से तू मरकर पावेगा, तेन पर ब्रह्म मुक्त्वा, इसलिए तू पर ब्रह्म को छोड़कर पर द्रव्य मति मां कार्षी. पर द्रव्य में बुद्धि को मत कर. શું કહે છે કે हे जीव, जहां तेरी बुद्धि है वहीं पर गति है. उसको जिस कारण से तू मर कर पावेगा, इसलिए तू पर ब्रह्म को छोड़कर पर द्रव्य में बुद्धि को मत कर. ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ. હે જીવ, જ્યાં મતિ ત્યાં ગતિ. મરણે પણ જો થાય તો કરના પર બ્રહ્મ વીણ મતિ પર દ્રવ્યની માય. એનો વિસ્તાર કરતા કહે છે, હે જીવ, જ્યાં તારી મતિ મન છે ત્યાં તારી ગતિ છે. જ્યાં તારી મતિ છે, જેવી મતિ તેવી ગતિ આપણે કહીએ છીએ ને, જેવી મતિ તેવી ગતિ, જેવી બુદ્ધિ એવી જ પછી ગતિ થાય. એટલે કે જેવી બુદ્ધિ છે, એવા વિકલ્પો છે, એવા ભાવ છે, તો એ પ્રમાણે બંધ પડે છે, એટલે એવી ગતિ થાય છે. જ્યાં મતિ ત્યાં ગતિ એમ કહ્યું ને, એનો અર્થ શું છે કે જેવી બુદ્ધિ છે એટલે કે જેવા વિકલ્પો છે તો એ સાથે રહેલા એવા ભાવ છે, અને એવા ભાવ છે તો એવો આશ્રવ થાય છે, અને એવા કર્મનો બંધ પડે છે, એટલે એ પ્રમાણે ગતિ થાય છે. એટલે કે છે કે હે જીવ, જ્યાં તારી મતિ મન છે ત્યાં તારી ગતિ છે, કારણ કે મરીને તું તે ગતિને પામીશ. માટે તું એક શુદ્ધ પરબ્રહ્મને મૂકીને પરદ્રવ્યમાં મતિને મનને ન જોડ. શું કહે છે કે માટે તું એક શુદ્ધ પરબ્રહ્મ, પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, પરમાત્મા સ્વરૂપ, એવા સ્વરૂપને છોડીને અન્ય દ્રવ્યમાં, પરદ્રવ્યમાં મતિને ન જોડ, મનને ન જોડ. એના વિકલ્પોને છોડી દે. પર તરફની દ્રષ્ટિ, પર તરફનું વલણ, પરના વિચારો, આ બધું છોડી દે પ્રભુ. કેમ કે
જેવી મતિ છે તેવી ગતિ થશે, એટલે કે જેવા વિકલ્પો છે અને વિકલ્પો સાથે રહેલા જેવા શુભાશુભ ભાવ છે એ પ્રમાણે પ્રભુ તને આશ્રવ અને બંધ થશે અને પછી એવી તારી ગતિ થશે. માટે તારા શુદ્ધ સ્વરૂપ સિવાય બીજો વિકલ્પ નહીં લાવ, બીજા વિકલ્પમાં નહીં જા, બીજા સંકલ્પ વિકલ્પ બધું છોડી દે. પરદ્રવ્યમાં બુદ્ધિ નહીં કર, પરદ્રવ્યનું વલણ નહીં કર, પરદ્રવ્યમાં મનને ન જોડ. કે જ્યાં સુધી મન દ્વારા તું પરદ્રવ્ય સાથે જોડાયેલો રહે છે ત્યાં સુધી તને વિકલ્પ છે, અને વિકલ્પ છે ત્યાં સુધી આશ્રવ તો થવાના જ છે. શુદ્ધ પરબ્રહ્મને નહીં છોડ. શુદ્ધ પરબ્રહ્મ એટલે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, એનું જ લક્ષ કર, એને નહીં છોડ. આગળ પણ કહે છે કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયથી ટંકોત્કીર્ણ એક જ્ઞાયક સ્વભાવ વાળા વિતરાગ સદા આનંદરૂપ અતિન્દ્રિય સુખ સુધામાં પરિણમેલા તથા પરમાત્મ શબ્દથી કહેવા યોગ્ય એવા પોતાના શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપને તજીને છોડીને પરદ્રવ્યમાં તથા શરીર આદિ પરિગ્રહમાં મન ન જવા દે, એમ તાત્પર્યાર્થ છે. બહુ સ્પષ્ટ કરી દીધું કેવું સ્વરૂપ છે. શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયથી ટંકોત્કીર્ણ એક જ્ઞાયક સ્વભાવ વિતરાગ પરમેશ્વર પોતે ભગવાન આત્મા છે ને. એક જ્ઞાયક સ્વભાવ વાળા વિતરાગ સદા આનંદ રૂપ. આનંદ કેવો? અતિન્દ્રિયપણે જે અનુભવમાં આવે છે એવો આનંદ, એવું સુખનું ધામ છે. એમાં પરિણમેલા તથા પરમાત્મા શબ્દથી કહેવા યોગ્ય એવા પોતાના શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપને છોડીને, એને તજીને પરદ્રવ્યનું લક્ષ નહીં કર. આ શરીર, જે શરીર સાથે તું રહ્યો છો એ શરીરનું કે બીજા બાહ્યમાં જે સંયોગે કરીને જે પદાર્થો પ્રાપ્ત થયા છે એમાં વિકલ્પો દ્વારા નહીં જોડા, એનું લક્ષ નહીં કર. એ બધો પરિગ્રહ છે. અરે પરના લક્ષ્ય થતા તારા શુભાશુભ ભાવ એ પણ તારો અંતરંગ પરિગ્રહ છે. 14 પ્રકારના અંતરંગ પરિગ્રહ અને 10 પ્રકારના બાહ્ય પરિગ્રહો એ તરફનું લક્ષ છોડી દે અને તારા શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર કર, એમાં એકાગ્રતા કર, એમાં લીનતા કર. એટલે પોતાના શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપને છોડીને તજીને પરદ્રવ્યમાં, અને શરીર પણ પરદ્રવ્ય જ છે ને, અને શરીર આદિમાં એ બધા સંયોગે કરીને મળેલા પદાર્થો એ બધો પરિગ્રહ, એમાં મન ન જવા દે. એટલે એના વિકલ્પો નહીં કર. એ રીતે ગાથા 112 છે. આપણે ગાથા 111 નો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ અને એમાં મૂળ વાત તો એ આવી કે જે ભવ્ય આત્માની બુદ્ધિ પોતાના શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપમાં વસે છે, એટલે કે વિષય રૂપ વિકલ્પો જાણનો ત્યાગ કરીને સ્વસંવેદન જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય છે, તે પુરુષ નિયમથી પર એટલે ઉત્કૃષ્ટ, જે બધાથી જુદો પડ્યો છે એવો પર પરમાત્મા સ્વરૂપમાં સ્થિત થયો છે એવો ઉત્તમ જન છે. એ વાતનો વિસ્તાર ગુરુદેવે ઘણો કર્યો અને હવે આજે આગળ એ વાત પણ સમજાવે છે કે જેવી બુદ્ધિ હોય છે તેવી જ જીવની ગતિ થાય છે, એમ ભગવાને કહ્યું છે. તેથી જે જીવનું મન નિજ સ્વરૂપમાં સ્થિત છે તેઓને નિજ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમાં સંદેહ નથી. તો આપણે ગાથા 111 નો શેષ ભાગ, ગાથા 112 એના ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 3, એના પાન નંબર
362 ઉપર છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, ત્યાંથી આપણે આગળ લઈએ છીએ। निश्चय कर होती ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, अर्थात शुद्धात्मा स्वरूप में जिस जीव की बुद्धि होवे, जिसकी बुद्धि शुद्धात्मा स्वरूप में है, जिसको वैसी गति होगी, शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, उसको पूर्णानंद की प्राप्ति उसको होगी। बता है ऐसी गति हो गई। वो स्त्री होती है ना, 5-25 स्त्रियों, 1.5 दिन चलता है, बात करते लिया, उसकी दृष्टि क्या है? करे नाम करे दान करे વાત કે કેમ બહાર કેમ તમારે કેમ છું કેમ ઘરે શું છે ન્યાય પડે નહીં એમ ધર્મીની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય પર હે સમજ में आया बात में बात आवे विकल्प आवे जोड़े પણ દ્રષ્ટિ જાય સદાનંદ સદાનંદ પ્રભુ ये मती खसती नहीं है। मती ऐसी गति है, शुद्धात्मा स्वरूप में जिस जीव की बुद्धि होवे उसको वैसी गति होती है। जिन जीवों का मन निज वस्तु में है, जो राग में नहीं, एक समय की पर्याय में भी नहीं, वस्तु जो त्रिकाली है उसमें जिसकी मति है तो निज पद की प्राप्ति होती है। अल्पकाल में केवल ज्ञान की प्राप्ति, उसमें संधि नहीं, संधि करना। जिसकी मति सम्यक दर्शन से अंतर में गई है उसको तो अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा होगा न होगा। दूई उगे उसको पुनम तो होगा ही। बीज दूई कहते हैं, दूई उगे ही तेरे दिन के पुनम होगा ही, पुण्यम न हो ऐसा बने। जिसको सम्यक दर्शन की बुद्धि अंदर में है तो केवल ज्ञान रूपी पुण्यमा प्रकट होगा होगा न होगा न हो ऐसा बने कोई नहीं। 30 में असर हो जाए पाछा 20 कब तक पुण्य होगा होगा जिसकी मति द्रव्य ऊपर है, वस्तु ऊपर है, उसकी केवल ज्ञान की पर्याय की गति प्राप्त होगी होगी न, भले एक भाव दूसरा भावपन होगी उसमें। सदा प्रताप शुद्ध आत्माओं पर दृष्टि की बात है। उसके पुज लगी है क्या? नहीं, मति तो निमित्त ऊपर है, राग ऊपर है, पर्याय ऊपर है, शब्द को भाव पर बात ही अच्छी अंदर भाव क्या है? ठीक लगता है हमारे बन की बेन बन की હવે બેન નો વિચાર મારો બાપા શું કહીએ ભાઈ વિરોમાં સમજાય છે મારો ક્યાં છે ભાઈ એ માર્ગ દૃષ્ટિ જુદ અલૌકિક ચીજ એમને માની બેસના એમે સમકેતી છે ધર્મી છે નગરતી બાપુ જેની વાત ભાઈ कहते हैं बाबा जो आर्थ ज्ञान है रौद्र ज्ञान की अधीनता से अपने शुद्धात्मा की भावना से रहित हुआ है जे कोई आर्थ ज्ञान એટલે પુણ્ય પરિણામમાં એકાગ્રતા, रौद्र ज्ञान पाप में एकाग्रता, अधीनता से अपने शुद्धात्मा की भावना से रहित भगवान आत्मा आर्थ ध्यान ने रुद्र ध्यान ने कारणे अंतर की धर्म ध्यान दशा से रहित है। रागादि परवाओं पर नमन करता है, तो शुभ राग पर प्रणमन करता है, तो वह मोक्ष पाता, ये वह दीर्घ संसारी होता है। रागादि परमात्मा तो प्रभावों स्वरूप प्रमण करता है, वह दीर्घ संसारी होता है। क्या कहते हैं? भगवान भव ने भाव रहित ऐसा भगवान की श्रद्धा ज्ञान की भावना छोड़कर
व्यवहार रत्न तरीका आदि में राग में रत है न राग की भावना करते हैं, ये दीर्घ संसारी है। संसार में रुलेगा। और जो निश्चय रत्न स्वरूप परमात्मा तत्व में भावना करता है, भगवान आनंद स्वरूप पूर्ण प्रभु, उसकी श्रद्धा ज्ञान में चारित्र निश्चय की भावना एकाग्र करता है तो वो मोक्ष पाता है। दो बात है, एक को दीर्घ संसार, एक को मोक्ष। राग की भावना करने वाला दीर्घ संसारी है, स्वभाव शुद्ध की भावना करने वाला मोक्ष पाता है। शुद्ध भाव पर राग है न, ये कहते हैं कि राग की भावना करते हैं का करना लायक न करना है, दीर्घ संसारी है। और आज परमात्मा तत्व ने भावना करता है तो मोक्ष पाता है। ऐसा जानकर सब रागादि विकल्पों को त्याग कर व्यवहार का विकल्पी दृष्टि में से छोड़कर परमात्मा तत्व में भावना करनी चाहिए। लो तात्पर्य, ये भगवान पूर्णानंद की एकाग्रता वो तरफ की भावना करनी चाहिए कि जिससे अल्पकाल में मुक्ति हो। इशारा से लो परमात्मा प्रकाश 112 का था। आगे फिर भी इसी बात को दृढ़ करते हैं। कई बात को जहां मति है ત્યાં गति होगी, जिसमें तेरी बुद्धि है वो तरफ का तेरे फल होगा। वो विशेष कहते हैं, बहु अलौकिक गाथा है। जई मई तही गई, जीव तू मरणो भी जन लही, ते परम मुएवी मई मां पर दबी करेगी। ये जीव शब्दार्थ, जहां तेरी मति वहीं पर तेरी गति। जिसमें तेरी रुचि होगी ये प्रमाणे तेरी गति होगी। क्योंकि भविष्य में तो अनंत काल तो रहना है आत्मा को। आत्मा तो अनादि अनंत है, तो कैसे हैं कि कहाँ रहेगा कि जिस तरफ तेरी मति होगी वो तरफ तेरी गति होगी, दे छूटकर। तो क्या ये जीव जहां तेरी बुद्धि वहीं पर गति, इस कारण से तुम मरकर पावेगा। ये छूटेगा तब जहां मति है ते चीज तुम पावेगा। समझ में आया? तो क्या मति करना, इसलिए तुम परम ब्रह्म को छोड़कर व्याख्या करेगा परम ब्रह्म की टीका में। परम ब्रह्म भगवान आत्मा चैतन घन विज्ञान घन, ऐसे परम ब्रह्म को छोड़कर परद्र में बुद्धि को मत कर। शरीर वाणी मन और दया दान व्रत ने भक्ति का भी भाव, ये सब परद्र है। तेरी चीज में जो मति होगी परद्रव्य में नहीं, तो तेरी मृत्यु पीछे तेरा आत्मा प्राप्त होगा। तेरे नहीं तो राग ने परमा तेरी रुद्धि न बुद्धि होगी, मरकर तेरे दुर्गति विकार में तेरी गति होगी। क्योंकि भविष्य में अनंत काल तो रहना है उसको। आत्मा क्या मर जाता है? तो जिस तरफ तेरी मति हो ये तेरी गति होगी। तो यहाँ तो मति क्या करना उसकी बात करते हैं कि परम ब्रह्म भगवान परम ब्रह्म आत्मा, बहु अलौकिक बात है विषय। टीका, ये परम ब्रह्म को छोड़कर परद्रव्य राग आदि में मति न कर। ये व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है पंचमावृत आदि का, ये राग में मति न कर।
देह छूटकर तेरे रहना तो है, और देह छूटेगा तो तू छूटेगा साथ में, तो तेरे रहना है तो क्या रहना है तेरे? परम ब्रह्म में मति कर तो क्या रहेगा तेरी गति? कैसा है परम ब्रह्म भगवान आत्मा? परम ब्रह्म એટલે आत्मा हो, परम ब्रह्म भगवान बीजा ऐसे नहीं। भगवान ही परम ब्रह्म नहीं तो भगवान उसका परम ब्रह्म है। अपना भगवान परम ब्रह्म प्रभु विशेषण आते हैं, अलौकिक विशेषण है। अमृतना रेला, अमृत नो रेलम छेल किया है। शुद्ध द्रव्यार्थी नहीं कर, क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से देखो तो कभी ચોપડામાં આવ્યા હોય નહીં, સાંભળવામાં આવ્યા હોય નહીં। शुद्ध द्रव्यार्थी नहीं, अभी क्या कहते हैं? एम कहते हैं भगवान एक बार सुन तो सही, तेरी चीज जो है शुद्ध द्रव्य टिकाली, राग नहीं, एक समय की पर्याय पण नहीं। परम ब्रह्म भगवान तेरी चीज शुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध द्रव्य अर्थिक, जिसका शुद्ध द्रव्य प्रयोजन है, ये नई का शुद्ध द्रव्य प्रयोजन है। शुद्ध द्रव्य शब्द है त्रिकाली ज्ञायक भाव, अतीन्द्रिय आनंद नो रसकंद प्रभु। ये शुद्ध द्रव्य अर्थिक, शुद्ध द्रव्य नाम पदार्थ जिसका प्रयोजन अर्थिक प्रयोजन, ऐसी नहीं। शुद्ध द्रव्य का प्रयोजन जो नहीं का है, ऐसी दृष्टि से देखो तो टाकी सका से घटा हुआ अघटित घाट, भगवान तो अणघटित घट घाट है, गया विना ना घाट है। ऐसी चीज पड़ी अंदर कि टंकोत्कीर्ण टाकी का से टाकना से खोद कर निकालते हैं अंदर नीचे, ये तो ऐसी चीज पड़ी अंदर में। पालिताने है ना, अद्भुत नाथ है, अद्भुत पालिताने श्वेतांबर। तो ये डूंगर में से पत्थर ऐसे से उसमें कूतर कूद के ऐसी प्रतिमा निकाली, निकाल पत्थर में से, ऐसा नहीं था डूंगर में से चारी बाजू निकाल कर एक मकान में एक दिखा है, सब दिखा अंतर में अंतर थी, उसको कोतर कर ऐसा रखा है एम भगवान आत्मा राग ने पिन पाप का विकल्प से मीन भगवान टंकोत्कीर्ण ऐसी चीज पड़ी अंदर। टंकोत्कीर्ण घट है, कासा गड़ा हुआ अघटित घाट नहीं, घड़ेला घाट है। दूसरा को गढ़ना पड़े घड़ा आदि को, तो अघटित घाट भगवान आनंद गुण स्वरूप। अरूपी अनंत गुण का पिंड अघट घाट, अमूर्तिक पदार्थ प्रभु है, उसमें कोई वर्ण रंग गंध रस है, अमूर्तिक प्रभु अंदर है। अरूपी पदार्थ, अमूर्तिक पदार्थ, ऐसी चीज जो है अंदर, ज्ञायक भाव स्वभाव है उसके पदार्थ की बात, पर है केवा स्वभाव उसका? ज्ञायक भाव स्वभाव, बस जानक 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 जिसका स्वभाव। समझ में आया? क्या मति लगाना वो बात करते हैं, समझ में आया? दूसरे से सबसे हटकर दया दान व्रत आदि ना परिणाम पर विकार से, उससे भी रुचि हटकर, मति को हटाकर
भगवान अंदर विनायक भाव स्वभाव नित्यानंद प्रभु पड़ा है। विनायक भाव स्वभाव वितराग है। अंदर प्रभु वितराग आत्मा है। अभी हो समझ में आया? विनायक स्वभाव वितराग, जिसमें देव गुरु शास्त्र की भक्ति का राग भी जिसमें नहीं, ये तो वितराग मूर्ति है प्रभु। अंतर में वितराग स्वरूप अरूपी अमूर्त पदार्थ, देव वाणी मन से भिन्न, पुण्य पाप का विकल्प से भिन्न, ऐसा परम ब्रह्म भगवान वितराग स्वरूप है। परम ब्रह्मनी व्याख्या सदा आनंद रूप है। ये तो त्रिकाली आनंद रूपे प्रभु है। अतीन्द्रिय आनंद नो कंद प्रभु है। समझ में आया? एक एक शब्द तो देखो। भगवान आत्मा अंदर ध्रुव नित्यानंद प्रभु, ये सदा आनंद रूप है। त्रिकाल अनाकुल आनंद का कंद प्रभु है। दुनिया बाहर में आनंद सोचते हैं न, स्त्री में, आबरू में, कीर्ति में, शरीर में, भोग में, धूल में ही नहीं, सुन तो सही। समझ में आया? प्रभु तो सदा आनंद रूप आत्मा है अंदर। समझ में आया? वो शकरकंद का दर्शन नहीं दिया था? शकरकंद, शकरकंद ऊपर की लाल छाल है, शकरकंद, शकरिया। लाल छाल न देखो तो आप शकरकंद, सारा साकर की मिठास का पिंड है, वो कारण शकरकंद कहते हैं। साकर का कंद, मिठास का कंद, शकरकंद। ये आत्मा आनंद कंद है। पुण्य पाप का विकल्प की छिलका है वो। शरीर वाणी मन तो पर है। समझ में आया? अंदर में वितराग सदा आनंद रूप। प्रभु त्रिकाल अनाकुल आनंद रूप प्रभु त्या मती दे, एम कहते हैं। मती त्या लगाए, तेरा कल्याण होगा। ये शिवाय कोई उपाय है? समझ में आया? अतीन्द्रिय अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख रूप। ये आनंद की व्याख्या विशेष करी। अतीन्द्रिय अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख, एनी जुट में आवे ऐसा सुख क्या है नहीं। अद्वितीय है ना, द्वितीय नहीं। अतीन्द्रिय सुख रूप भगवान आत्मा तो यार केम वैसे एक समय की राग की पर्याय जो है, अथवा राग के जानने की एक समय की पर्याय जो है, उससे पीछे भगवान विराजते आत्मा। अरे इन्हें क्या खबर है? समझ में आया? अद्वितीय अजोड़ अतीन्द्रिय सुख रूप, जिसकी साथ सुख दूसरे से मिलाप करे ऐसी चीज है नहीं। अद्वितीय अजोड़ अतीन्द्रिय सुख प्रभु तो हमारे है। ये भरपूर भगवान आनंद से भरपूर पड़ा है। समझ में आया? नारियल ना दृष्टान नहीं दिया था? नारियल ना तो बोला छाला जुदा है, काचली जुदी है, और लाल छाल काचली को टोपरा पाक करते हैं ना, तब लाल छाल निकाल देते हैं ना। तो लाल छाल जुदी चीज है न, टोपरा पाक जुदी चीज है। टोपरा जो है तो मीठा धोला सफेद है, शेर डॉढ़ शेर का। ऐसे भगवान आत्मा शरीर से साला है, उसके भिन्न है। कर्म 8 कर्म जड़ है, काचली उससे भिन्न है। और पुण्य ने पाप शुभाशुभ भाव रूपी फौतरा उससे भिन्न है। फौतरा तिलका।
है क्या? अभी कब क्या है? आज किसकी बात चलती है? टिकाली भिन्न है, दृष्टि नहीं उसकी। वो गया दुनिया में डालचंद जी नाम, शोभालाल जी फलाना टिकना हमारा को समझ में आया? हाँ हाँ। कुपुर भाई क्या गया? हसमुख गया? ठीक, छोड़ूंगा भाई, धंधो कर वो नहीं। हाँ 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 हाँ। अरे प्रभु तारी चीज क्या है प्रभु? अरे जहाँ है त्या मती जोड़ दे, जहाँ तेरी चीज नहीं चाहते मती जोड़ दिया है। जहाँ तुम नहीं, पुण्य पाप इनका फल शरीर वाणी स्त्री कुटुंब ये तो सब खेतर खेतर सब छूट जाएगा। 50-25 वर्ष एक खेतर मकान में रहे, छूट जाएगा। ये मकान के तेरे नहीं, मकान में तुम नहीं। इस चीज से तो तुम भिन्न है, तो अभी भी भिन्न है, અને छूटेगा तो भिन्न रहेगा बाहर। तो एक बार प्रभु ऐसा कर कि जहाँ तेरी चीज अनाकुल आनंद से पड़ी है, अमृत के रस कर तृप्त। भाषा तो देखो। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय अमृत का रस से तृप्त पड़ी है चीज। समझ में आया? ओ परम ब्रह्मात्मा की व्याख्या। भगवान तो कैसी चीज है? अरे बालक ने, युवान ने, वृद्ध ने ये अवस्थाओं तो जड़नी है। स्त्री पुरुष ना आकार ये बधा तो जड़ना है कि तेरी नहीं, तू नहीं उसमें। जिसमें तू है तो अमृत रस का कूप है। तो अमृत रस का तृप्त। जेम कोई सारा भोजन करके तृप्त होता है ना, ये आत्मा अमृत रस से तृप्त है अनादि से कहता। अरे केम बेसे? एक अनुकूल सहज चीज મળે ત્યાં રાજી हो जाए। 5-10 लाख रुपया મળે કે આ બાયડી ઠીક મળે, છોકરા ત્યાં અરે શું પ્રભુ છે, તું ક્યાંનો છો, ક્યાં વિચાઈ ગયો? समझ में आया? तो भगवान भाई प्रभु तेरी मति क्या है? जो राग ने पर ऊपर मति है तो इस संयोग में तेरे रहना पड़ेगा। भविष्य में बहुत भ्रमण में रहेगा तो तेरे। राग ने पुण्यादि नी मति जो है ना, उसका फल में मति जो रहेगी, तो ये संयोग तेरे को छोड़े नहीं, ये संयोग में रखना पड़ेगा तेरे। 5-50 વર્ષ જે મકાનમાં રહે ને, એ મકાન જાણે મારું બસ, આ મારું મકાન, અને ખાટલો હોય ને, ગોદડા હોય ને, ગોદડા ગાદી વાળી બસ, ઓઢવાની રજાઈ ને તો અરે બહુ શું છે, પણ એ તો પર જડ છે, એમાં તો है ये तेरा है, तेरे से निकल जाएगा, तुम मृत्यु हो तो निकल जाएगा, तो कहीं रहेगा नहीं। तेरी चीज हो रहेगी, आ चीज नहीं रहेगी। जो मति उसमें है तो अज्ञान भाव ने मिथ्या भाव साथ में रहेगा। समझ में आया? क्या नहीं है? मृतम मृत्वा दे छोड़कर तेरी जहां मति होगी, ते चीज तेरे उस मृत्या पीछे मिलेगी। जो मति पुण्य पापना भाव में, सहन का फल में, शरीर में, मकान में, जाने मकान हमारा, हमें क्या मकान, आ तो जड़ की चीज है। અને એ મકાન ને જે ખૂણે में ખાટલા હોય, પાસે માથે મચ્છરદાની कहते हैं,
મતલબ એના એકાકાર થઈ જાય. આ શું છે પણ પ્રભુ તારા આ ચીજ કઈક તું તારી હે તું उसमें હા 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 શેઠ है धूल ही नहीं उसका, धूल राख है. तो राख आत्मा की है, आत्मा अमृत से तृप्त है, उसके राख उसकी है. એની આત્મા क्या चीज है इसकी खबर नहीं, એની કિંમત જ નહીં. दूसरा की कीमत करे. सोनू ऐसा है, हीरा ऐसा है, ढूंढे છે ને એક એક હીરા 50,000 લાખ લાખના 2 લાખનો ધૂળ. એમાં ક્યાં પણ કે પરખ્યા માણિક મોતિયા, પરખ્યા હેમ કપૂર, પણ પરખ્યો ને એક આત્મા ત્યાં રહ્યો દિગ્મુંડ. રમકડા કેટલા દિન ભાઈ ને રમકડા છે. હા હા હા, ये दुकान पर बैसे थड़े बस आकारी थी जब अंदर एक क्षेत्र आकार होती थी आ मकान में आ गाड़ी ना आ गल्लो गल्ला हूँ कहवाय गल्ला कहते पैसा ना रखवा. हाँ हाँ हाँ, हमारे ત્યાં थी नहीं गल्ला में बैठता नहीं जोड़ी थी दुकान में. हाँ हाँ हाँ, कौन क्या चीज बापा कौन क्या ये जगत ની ચીજ માણના હાડકા છે. હે હાડકામાં ફૂસ ફાસફૂસ નીકળતી હે ને એમ પ્રકાશ. છોકરાઓ જાણે કોઈ યંત્ર ભૂતોડા 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 કઈ નહીં, એ તો ફાસફૂસ है. હાડકા આ બધા હાડકાની ફાસફૂસ है. प्रभु तुम एना से भिन्न है, तेरी मति ત્યાં है, तू छोड़ दे. हाँ 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 हाँ, ये क्षेत्र आकार, ये मित्र आकार, स्त्री आकार, दिक्रिया आकार, लक्ष्मी आकार है. हाँ हाँ हाँ, ये मकान में रियो 50 वर्ष 60 वर्ष में बस आ भीत ने आना बस अपन क्या ये तू क्या छे त्या. अहिया तो पुण्य पापना भाव हुआ है, त्या हम ऐसे मान्य लिया. दया दान व्रत भक्ति पूजा ये तो राग पुण्य है, पर वस्तु है. उसमें तुम नहीं, वो तेरे में नहीं, तेरे में तो अमृत रस के तृप्त तेरी चीज है. तेरा अमृत ने माटी पर चीज की तेरे जरूर. हाँ 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 हाँ, બહારની મોહની મીઠાશ. હા હા હા, કે છે એક વાર છોડને પ્રભુ, તેરામાં અમૃત રસ ભર્યા है ना, तेरी खबर नहीं. वो गोल का रवा नहीं होता है, क्या कहते हैं, गोल की बेली मोटी आवड़ा रवा होता है 4 मन नहीं, उसमें से जब तड़का हुआ है ना गर्मी बहुत गोलते हैं तो उसमें तो गलपन करते हैं कि काली जीरी निकलती है. हाँ हाँ हाँ, भगवान तो अमृत का गासड़ा है. अमृत का ये शू कहवाय कि नहीं वेली नहीं आपने कैसे ने रवा रवा વેલી કહેતા સવા 4 મણ નો એ તો 25-50 100,000 હોય છે ને. મોટી વખારી હોય ને મુંબઈમાં બધું જોયું છે, બધું માલ લેવા ગયેલા ને ત્યાં. હા હા, મોટી વખારી હોય. એક ફેરી તો એક મકાન એવી જોઈ ના કેસર કેસરભાઈ કેસરનો ડબ્બા, તે આખી વખાર કેસરનો ડબ્બા જ ભરી મોટો ગ્રસ્ત એ મોટી વખાર માલ લઈને કોઈ ગઈ છે. તેવી નાની ઉંમરમાં 20-21 વર્ષની ઉંમરે ધંધા ક્યાં તો 5 વર્ષ. હા 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 હા, એકલા કેસરના ડબ્બાની મોટી વખત તેથી હોંગરનો રૂપિયા ભાર કેસર. હવે કઈ મોંઘું થઈ ગયું ખબર નથી, મોંઘાઈ ને બી ડબ્બાના ડબ્બા હજારો હો મોટા મોટી વખાર. હા હા હા, હવે એમાં એ વેપારી ઘરે ને એને એવું છે હા 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 હું છે આ મારો માલ ને અમારી વખાર ને હે. હા હા હા, એ બોલ ભાઈ
तुम्हारा लाडी। अब जेने वही नहीं बस संयोगी चीज बापू, ये तो संयोगी चीज है। एक ये ऊपर आका तेरी भर्ती हो गई, निकलना कठिन पड़ेगा प्रभु। समझ में आया? एक कोई भाई त्या अपने राजकोट नहीं लीलाधरबेन को હવે એની મકાન જુઓ તો દાદરા સીટી પાલિશ લાકડા પાલિશ અને તમારા નામે ન હોય ટેબલ બેબલ હોય છે ને, આ ચા પીવાના ટેબલ હોય સાફ પાલિશ, એના પર કપડા, એના પર 10-15 માણસ બેસ ચા પીવા બેસે છે। ઓહો ત્યાં ભાઈ હું ગયો વરવા ત્યાં મને એમ થયું હશે અરે રે પ્રભુ આમાંથી નીકળના મુશ્કેલ પડશે। એક એનું પાલિશ ને એક અહીં પાલિશ અમરેલીમાં નાનું ભાઈ નાનચંદભાઈ ખારા એનું મકાન બધું પાલિશ છે। પૈસા થોડા પણ પાલિશ બહુ, બધા મકાન સાફ પાલિશ લાકડા છત્ર બારણા ને પાલિશ। અરે પ્રભુ આમાંથી નીકળવું મુશ્કેલ પડશે, તારી દ્રષ્ટિ ચોટી ગઈ ને। જ્યાં મતિ ત્યાં ગતિ है। भगवान एक बार मति यहाँ तो लाए कहते कहा तुम जहाँ है क्या कैसा है तुम, ये कहते हैं अतेंद्रीय सुख रूप अमृत के रस के तृप्त। જેમ પેટ ભરીને ચૂરમા ખાયા હોય ને તૃપ્ત હોય ને પેટ, ऐसे अमृत रस ने पेट भराया तेरा नरात्मा। तेरा तो विनायक शरीर है, आनंद शरीर ही तेरा चीज है। ऐसे अमृत रस परम ब्रह्म की व्याख्या, तेरा आत्मा का परमार्थ स्वरूप की व्याख्या, एमा ऐसे निज शुद्धात्मा तत्व को छोड़कर देखो, ऐसे ये प्रकार का भगवान आत्मा निज शुद्धात्मा अपना शुद्धात्म तत्व उसको छोड़कर द्रव्य कर्म में मति न कर। तेरा जड़ कर्म है 8, ये तेरी नई मति छोड़ देने से। भाव कर्म दयादान का विकल्प जय भाव कर्म पुण्य ने पाप का भाव, ये भाव कर्म। पंच महाव्रत का भाव, 12 व्रत का भाव, ये भाव कर्म। त्याथी मति छोड़ दे, जो त्या मति रहेगी तो ते प्रकार नो तने संयोग विकारी प्राप्त होगा। दुख में तुम रहेगा भविष्य में अनंत काल। जहाँ मति है ये संयोग मिलेगा, ત્યાં तेरे दुख में रहना पड़ेगा अनंत काल भविष्य में, मृत्यु की है। यहाँ जो मति होगी ये व्यवहार विकल्प जो है उसकी भी संग छोड़ दे। समझ में आया? देह संगादिशु है ना, संस्कृत में है देह संगादिशु, संग है ना संस्कृत में है देह संगादिशु माकार्षिति। भगवान राग ने देह नो संग में प्रीति मत कर, तेरे हैरान होगा। रो भविष्य ना काल में तेरे दुख ना डूंगर में रहना पड़ेगा। मति छोड़ दे ये तरफ से। अमृत रस से तृप्त अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख नो सागर भगवान, ऐसे भगवान आत्मा को छोड़कर, निज शुद्धात्मा छोड़कर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। द्रव्य એટલે જડ કર્મ है ना, ज्ञानावरण 8। भाव कर्म એટલે दया दान पुण्य पापना भाव, ये भाव कर्म। नो कर्म शरीर वाणी, ये नो कर्म। देहादि परिग्रह आया ने, देहादि संग है ना, ये आई नहीं। देहादि परिग्रह में मन को मत लगा।
संस्कृत में है देह संगादिशु, देह वाणी मन स्त्री कुटुंब परिवार पुण्य ने पाप का भाव। ये वो परिग्रह है, ये मन को मत लगा, ये परिग्रह पर वस्तु है। और तेरा परम ब्रह्म में मति लगा दे। सम्यक दर्शन का विषय बताते हैं। सम्यक दर्शन की बुद्धि दृष्टि टिकाऊ पर जाती है। ऐसा तृप्त तृप्त भगवान आत्मा आनंद का रवा है। समझ में आया? उसमें एकाग्र होने से जिम रवा में से जिम गलपन गौ प्रभाव होता है न, ऐसे भगवान अमृत का रस में मति लगाने से पर्याय में अमृत का प्रभाव रहेगा तेरे। समझ में आया? આવી વ્યાખ્યા ભારે આખરી પડે લોકો બહારની વાતો કરે, આ કરું મરી ગયો હવે આંબલને કરી કરીને। અહીં तो कहते हैं कि भगवान एक बार शुद्ध द्रव्य स्वरूप टंकोत्कीर्ण अघटित घाट स्वमूर्ति ज्ञाय स्वभाव वितराग सदानंद रूप विशेषण तो देखो। शास्त्रकार ने शब्द थोड़ा पढ़ते हैं। भगवान पूर्णानंद प्रभु उसकी व्याख्या करने में शब्द थोड़ा पड़ते हैं। ऐसे भगवान आत्मा जे स्वरूप सर्वज्ञ દીઠું જ્ઞાનમાં તે કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન। જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ દીઠું જ્ઞાનમાં કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન। જો વાણી છે જળ, ચૈતન્ય જળની સાથે આત્માની વાત કરવી, જળ દ્વારા આત્માની વાત કરવી, દુશ્મન દ્વારા પોતાના વખાણ કરાવવા। વાણી જળ, શરીર જળ, ભગવાન ચૈતન્ય મૂર્તિ એ કેવો છે વાણી દ્વારા કેના કેટલું કે। સમજ में आया? શ્રીમદે કહ્યું શ્રી ઉપરોસમાં જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ દીઠું જ્ઞાનમાં કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન જો। તે સ્વરૂપને વાણી તે શું કહે? ये स्वरूप ने निरा वितरागनी वाणी पूर्ण कही सकी नहीं तो दूसरा नहीं वाणी कैसे कह सके? अनुभव गोचर मात्र रह्યું તે જ્ઞાન જો। એનો અનુભવ કરે ત્યારે ખબર પડે કે આ ચીજ क्या है। અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો। અપૂર્વ અવસર એવો ત્યારે આવશે। શ્રીમદ ભાવના કરે છે ગૃહस्थाश्रम सम्यक दृष्टि था, आत्मज्ञानी था, भाव का छेद कर डाला था। હવે એમને આવો અવસર ક્યારે મળશે? પૂરણ કેવો જ્ઞાન લેવા માટે એ ભાવના લેકર ગઈ तो मति ત્યાંથી જ ગઈ તો ત્યાં मति भविष्य में मनुष्य होकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष जाएगा। भले गृहस्थाश्रम था, सम्यक दर्शन था, अनुभव था, परम ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किया, आश्रय किया, तृप्त हुआ, सत्कार किया, स्वीकार किया। ये अनादि से राग आदि क्रिया पर की उसका स्वीकार था, ये तो मिथ्या था। समझ में आया? ऐसे परम ब्रह्म में प्रभु एक बार मति जोड़ दे, उसकी रुचि कर અને दूसरी सबसे रुचि छोड़। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सके। समझ में आया? अपना स्वभाव की भी रुचि हो
और राग आदि पन की भी रुचि हो, नहीं रह सके प्रभु। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सके। समझ में आया? श्रेष्ठ वार्ता है। निर्विकल्प आनंद नो नाद प्रभु, अमृत ना तृप्त तृप प्रभु, अद्वितीय अतिद्री सुख नो सागर, शांति नो सरोवर। अनंत शक्ति नो संग्रहालय, गुण नो गोदाम प्रभु, स्वभाव नो सागरनाथ। ये चीज ने जो मती मुक्त्या, पण हजी वस्तु क्या है नहीं खबर न મળે। क्या मती करवी रोडवी कैसे ही खबर कहां से। ऐसी चीज का माचम आए बिना मती ये तरफ कहीं झुकेगी नहीं। बाहरनी माचम में घुस गई है, थोड़ा पुण्य किया न ऐसा न पंथी पद मिला, कोई स्वर्ग मिला न कोई करोड़पति अबजपति हुआ न, धूड़ में एनी बहान एनी राख है। प्रभु एक बार सुन तो सही। परदर से मती छोड़, एक है ना, देखो देहादी परिक्रम में मन को मत लगा। समझ में आया? चैतन्य भगवान वितराग मूर्ति प्रभु विराजते हैं नाथ। तू हो वितराग स्वभाव प्रति प्रेम करने, त्या मती ने जोड़ देने। तेरे मृत्यु पीछे परमात्मा तुम होगा। जरूर होगा। दे छूटे ने अदेही हो जाएगा। भले एक आध दो भाव हो, पण अदेही है पीछे कदर। समझ में आया? भाई परमात्मा प्रकाश ये बार हुआ। હવે ये स्वद्रव्य की व्याख्या किया है। હવે परद्रव्य क्या शीर्ष प्रश्न करते हैं। परद्रव्य कहते किसको हो? 112 सरवाળો ચોથું થાય। ये એ રીતે ગાથા 111 તથા ગાથા 112 નો વિસ્તાર પૂરો થયો। જેવી મતિ તેવી ગતિ પૂજ્ય ગુરુદેવે ખૂબ વિસ્તારથી સમજાવ્યું। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। सुखधाम अनंत सुसंत चली दिन रात रहे तद ज्ञान मणि प्रकांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पद ते वरते जय।